In short, I will again repeat that whatever we are going to share during these 9 remaining days are proposals. So these are all proposals. Please don't accept them. And you have to simply consider each proposal that I will share here and use your natural acceptance, आपकी सहज स्वीकृति. So let your natural acceptance guide you to accept what seems right and what seems wrong. And again, as we discussed yesterday, natural acceptance is something that is like our intuition, inner voice, conscience. There are so many words for it. But essentially, it is that part of us which instantly knows what is right. It doesn't need a lot of logical thinking and analysis. We simply know. For example, if we ask ourselves, do I want to be happy? We will say yes. That straight away comes from natural acceptance. All right. So the process in this workshop will be two-step process. First, everyone will verify everything that I am proposing and we will discuss upon that. And secondly, we will live that way. हम जी कर देखेंगे कि भाई ये बातें जो हमने मानी, ये जी कर देखने में भी हम उसका प्रूफ देखेंगे कि सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है. When we live with it, we will live with it with our family members and with our colleagues in office, with the people on the road. We will apply all these proposals in our behavior with them. And second, we will also apply these proposals in our work, so that there is mutual happiness everywhere and mutual prosperity everywhere we are. And it is very important to keep thinking about them throughout the day, not just during these sessions. So the dialogue will start first within and then with each other. Yesterday, we also discussed that the role of education is to develop the human consciousness in a human being. That is what we discussed. We also discussed that the basic human aspiration, if we look at this slide now, the basic human aspiration is that we all want to be happy and prosperous in continuity. That is, in every moment of every day, all the time, we never want to lose these feelings of happiness and prosperity. And by happiness, we are meaning the related feelings of happiness, peace, satisfaction, and bliss within ourselves and with all our relationships. Then we also discussed about the needs of a human being. We discussed that human being has 3 needs. We discussed that if we live assuming that only physical facility will give me happiness, like having more money, more salary, more things in my house, a bigger car, a bigger house, if we are living assuming that physical facility will give me lasting happiness, satisfaction in life, and also a sense of prosperity, then we may end up in an endless race of accumulating more and more physical facility while never being really happy and prosperous. That we called as animal consciousness. If somebody is only focused on number 3, and if number 3, that is physical facility, is their number 1 priority in life. So we also discussed that the development that has to happen in a human being is that they have to need to have all the 3 in their life in order to feel happy and prosperous. We need the right understanding within ourselves. We need mutually fulfilling relationships, and we also need physical facility and health. When all of these 3 are ensured, that's when there will be mutual happiness and mutual prosperity. So within our families and everywhere in our workplace, in society, this is what we need to develop through education, and this is what we did not get, which we covered yesterday. Our whole focus in the whole education system and society has been on physical facility and providing technical training to make and earn physical facility. But we have not been taught about right understanding, about relationships, and about what is the way to produce physical facility, how much physical facility my family needs, what physical facility my family needs, how to rightly earn and how to rightly spend. So the role of education, we concluded, is transformation from animal consciousness to human consciousness, so that we can live as a human being with continuity of happiness and prosperity
within ourselves and all our relationships means total harmony every day, as much as possible, all the time, within me and with my family and with everybody else. So this was what we covered yesterday. So we can see this is what the progress we need to make, and this is the purpose. All right, Krishnayo. Okay, friends. Is there anybody here who does not understand Hindi? You can raise your hand. Because then maybe I can continue in Hindi as well. Sometimes it flows much more naturally. Okay, so everyone understands Hindi. Nice. ठीक है. So today, my friends, we will cover the subject of what am I? Understanding myself as a human being, which is coexistence of the self and the body. So, yesterday we discussed that the basic human aspiration of every human being is continuous happiness and prosperity. Not in pieces, but in continuity. Not even for 1 second we want to lose our happiness and prosperity. By happiness, we mean to be in total harmony within ourselves and with the rest of the world. So this is the human purpose. There are 3 words I am giving you: purpose, potential, and program. So every human being has same purpose: to feel happy and prosperous, to live in harmony. Every human being has the same potential to realize its purpose. And the third part is program, how to realize the purpose. The program is also same for every human being. This is, in essence, it is the same. In form, it may vary, but in essence, the program is the same for every human being. The harmony for us and every human being is at 4 levels, which we need to ensure. सबसे पहले, harmony within myself, with my body. Second, harmony in my family. Third, harmony in the society, which includes my larger family, my colleagues, and everybody else I know in my neighborhood and everywhere else, and total human society. We need harmony in society. And the fourth is harmony with the rest of nature. So in this course, we will cover all of them. And today we are going to explore about human being, self and the body, and harmony about human being. So again, the question is, what am I and what is my purpose? Which everybody explores, asks themselves in their life, no? And which, as we discussed, it is a proposal that my purpose is that I always want to feel happy and prosperous. This we discussed yesterday. Am I the body or am I with my body is the first question. Am I exactly the same thing as body, which means we are not 2 different objects. We are one object only, it is just the body. Or do I exist separate from the body? That is, I operate my body, I get sensory inputs from my body, but I am different from my body. Second question is, when I look at the mirror, do I feel that I am seeing me, or have I ever felt that I am seeing the reflection of my body? And let us be really honest here. We are not trying to impress everyone. This is just a reality check about ourselves. The more brutally honest we are, the better it will be for us. We are all the same, huh? No one is perfect. I am not perfect. And most probably no one in the group is. So it's really okay to put things. So yes, most of us feel कि हम शरीर के साथ हैं. शीशे में देखते हैं तो हम अपना शरीर का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं. जब शरीर सुंदर लगता है तो हम समझते हैं मैं सुंदर दिख रहा हूं. बड़ा इंटरेस्टिंग. और कुछ लोगों ने भी बोला कि शरीर सुंदर दिख रहा है. मतलब कि हम शायद अपने को शरीर ही मान रहे हैं इन क्षणों में. हम क्या बॉडी से सेपरेट फील किए हैं? कई लोग बोले हैं 60% यस, कुछ लोग बोले नहीं. एंड क्या शरीर बॉडी को चला रहा है या बॉडी शरीर को चला रही है? अच्छा, very interesting response to the 5th question.
most of us have said that the question was that, am I operating the body for my purpose, or is the body operating me for the body's purpose? Very interesting. So we will explore this in detail further. But may I hear from somebody who has answered the question that the body is operating me? Can someone of you please share your thoughts of Ayush putting bhai, the... Mhm. Ayush bhai, this is Shunyo. Oh Uh, yes. Punya. for the last question, I felt that it's both ways. For the survival, it's the body which is in charge of me. When I'm hungry, the body demands food and things. And in lots of ways, I am in charge of the body as well. So I think my answers were both, but because it was an optional question and not check boxes, I had to choose one. Okay. So that's my feeling around it. Okay, okay. Thank you, Shunyo Bhaiya. So Haji. today and tomorrow we will discuss more on relationship between me and body. So Ji, the ji. example you have shared, Bhaiya, is that body gives me information. So Yes. the exchange between me and the body is that body gives me information and I give it instructions. For example, body will Right. give me information that it needs food and nutrition. Correct. And then I will instruct the body to go to the fridge and take something out and start eating. Correct. But in certain cases, the body is in charge as well. Like, say, once I've had food, digestion ke liye, I don't give it instructions. It takes care of itself. Yes. The heartbeat runs by itself. Um, when I go to excreta or to toilet, the system takes care of itself, is what I mean. Yes, you are right. Yes. So basically, So in a way, somehow either I didn't understand the question properly, or I Mhm. have answers which are both ways. Okay, okay. So Bhaiya, to this thing, so the body is operating autonomously as the body, like the heart is beating, food is getting digested. Then I Yes, don't need to interfere with it. The body is doing its job. true. I am going on with my thinking and my desires and imagination. And so essentially, what we are trying to draw now, let us move forward with this. Let Uh-huh. us have a look at the next screen and maybe it will give more clarity. So Sure, there's sure. the separation between me and the body, like the activities of the body, which we discussed. Let us look at it. So, okay. So the proposal is that I am coexisting with the body. And let us look at the needs and activities. We will cover both. Okay. You see, we will cover needs and the activities, both of the self and the body. So we will come to this now, Shunyo Bhaiya. So let us look at the needs. Haji, So yes. what are needs of the body? The body needs physical facility. This is a broad term I'm using for all physical things that the body needs, like food, air, water, clothes, house, and all this stuff. The self needs the right feelings within, that I want to feel harmony, I want to feel happiness, I want to feel prosperous. So self wants to feel happiness and harmony. Now, the second thing is, in time, my desire to feel, my need or want to feel happiness is a continuous need, while the needs of the body are temporary. That is, I feel hungry, then I eat food, body is not hungry. The body feels thirst, I drink water, the body is not thirsty anymore. Similarly, the need to sleep and exercise and everything else. But my needs always stay. Even in my dreams, I don't want to lose my happiness. Then in quantity, if we look at it, the body's needs are always quantitative. That is, they can always be measured in kilograms or length or breadth, like height of my body. So the clothes, the size of the clothes, or the length of the bed, or the amount of food I need to eat, or the air I need to breathe. But in the self, in me, my requirements are in feelings. They are, जैसे हिंदी में बोलते ना कि भाव है. So my requirements are in feelings. Just 1 minute. Yes. Sorry. तो मेरी जो requirements हैं वो भाव में हैं. So अब देखें कि ये क्या दोनों requirements same type की हैं. यहाँ पर difference दिखने लग जाता है मेरे और शरीर की requirements में कि both needs are different.
Now second question comes that are both the needs important? Do we want fulfillment of both needs? Typical answer is yes, both needs are important. Then are we working to fulfill both kinds of needs is another question. How much effort are we spending in our lives as a society typically and individually on our physical facility related needs, body related needs, and how much are we spending on ensuring the right understanding within myself and harmony in my relationships? Then what is the priority between the two needs of the self and the body? And I would really like to know again what you all feel about it. Maybe I have a poll created for this. Yes. Please, can you, this poll has some questions. So this question also has the priority between the two needs, like which need is more important? It's a very important question, that are my needs more important or the body's need more important? So now again, it comes back to my understanding whether I am operating the body or is body operating me, again on which we discussed that the body gives me information on what it needs and I give it instruction. This relationship again we will explore tomorrow. But for now, let us quickly, whatever we feel we can share. There is no right or wrong answer and no good answer. We're just exploring together. I've launched a poll again. अच्छा जी, ये जवाब आए। पहले क्वेश्चन का तो चलिए, ज्यादातर लोग को फील हुआ कि नीड ऑफ सेल्फ सेम एज नीड ऑफ द बॉडी। कुछ लोगों ने यस बोला है इस पे। कैन समवन ऑफ यू प्लीज एलैबोरेट हाउ, जैसे स्क्रीन में हमने डिस्कस किया नीड ऑफ सेल्फ और बॉडी का, ये जो सामने खुला हुआ है, आपको कैसे लगा कि ये दोनों नीड सेम है? क्या शेयर कर सकते हैं? इंटरेस्टिंगली पॉइंट नंबर 2 पे भी ब्रेकअप आया है, ओनली सेल्फ नीड आर मोर इंपॉर्टेंट, बट ज्यादातर लोग ने बोला बोथ नीड्स आर इंपॉर्टेंट एज अ ह्यूमन बीइंग। पॉइंट नंबर 3 पे ये आया कि माई नीड्स आर मोर इंपॉर्टेंट, द बॉडी नीड्स आर टू सर्व माई नीड्स। इंटरेस्ट, बिल्कुल मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, बट कई लोगों ने बोला बॉडी नीड्स आर मोर इंपॉर्टेंट, माई नीड्स आर सेकेंडरी। तो शायद आप लोग का ये विचार आया हो कि भाई अगर बॉडी मरने ही वाली है, मतलब आई एम लिटरली एक सर्वाइवल का स्ट्रगल हो गया है, तो मैं कहाँ पे रिश्तों में सुख और वो ढूंढ रहा हूँ। मतलब शायद आपने ये सोचा हो, क्या मैं सही समझ क्या ढूंढूं उस टाइम कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो शायद बॉडी नीड ज्यादा जरूरी है। पर हम टिपिकल डे का सोचे ना, जब हम स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल नहीं है, जब इंश्योर्ड है कि फिजिकल फैसिलिटी है, खाना मिल रहा है हमको, तो ज्यादा जरूरी क्या है? ये था वो सवाल रियली। तो उसमें सोचने पे यही समझ में आता है कि जैसे आप सोचे कि मानिए कि आप खाना खा रहे हैं, बहुत टेस्टी खाना आपके सामने है, और जो आपको गेस्ट, किसी ने, आप गेस्ट की तरह किसी के घर गए हैं, जिसके आप होस्ट के यहाँ बैठे हैं, उसने खाना तो बहुत अच्छा सर्व किया, आपको भूख भी बहुत तेज लगी है, पर फिर तभी उसके पास एक फोन आता है, उससे उसका कोई बंदा पूछता है भाई कौन लोग आए हुए हैं, वो कोने में जाके बोलता है यार ऐवे ही लोग आए हुए हैं टाइम पास। तो फिर क्या आपसे खाना खाया जाएगा वहां बैठ के? तो मतलब ये एक सवाल है सोचने वाला कि उस टाइम जब डिसरिस्पेक्टेड फील करेंगे, तो क्या उस घर में बैठ के हम खाना खाएंगे चाहे शरीर को भूख भी लगी हो? तो ये बात है कि तो उस टाइम किसकी नीड ज्यादा जरूरी हो जाती है, सेल्फ की कि बॉडी की? लास्ट क्वेश्चन, कैन समवन एल्स एंश्योर माय और डिस्टर्ब माय इनर स्टेट ऑफ बीइंग, माय फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस? वेरी इंटरेस्टिंग कि यस, अदर्स कैन डिस्टर्ब माय इनर पीस, और कई लोगों ने बोला है कि नो। ज्यादातर तो हाफ हाफ है ऑलमोस्ट। इस पे आने वाले दिनों में हम कंटिन्यू करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। सो उस पे हम जरूर आएंगे। ओके, नेक्स्ट। सो अब आते हैं कि नीड फुलफिलमेंट, कि जो मेरी नीड्स हैं, जो सेल्फ है, और जो बॉडी की नीड्स हैं, दोनों कैसे फुलफिल होती हैं। ये निकल के आया कि बॉडी की नीड्स के लिए वी नीड भौतिक रासायनिक वस्तुओं से होती है, फिजिकल केमिकल थिंग्स like food, water, air, everything is physiochemical. Even a medicine is physiochemical thing, right?
So all body's needs are fulfilled through physiochemical stuff. Now comes to how does my need get fulfilled. उसमें समझ में आता है कि सोचने पे ऐसा मुझे लगता है कि एक सेल्फ की नीड्स केवल सही समझ और सही भाव से फिल होती है। जैसे कि इस टाइम मैं शांत भाव में हूं, प्रेम के भाव में हूं, है ना, मैं सुख के भाव में हूं, जो कि मेरी नीड भी है हैप्पीनेस में होना। तो जब मैं दूसरों की रिस्पेक्ट फील कर रहा हूं और दूसरे मेरी रिस्पेक्ट फील कर रहे हैं, तो उस टाइम मुझे अच्छा लगता है, मतलब सही भाव मेरे अंदर भी है और मुझे दूसरों से भी सही भाव मिल रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है, मेरी नीड उससे फुलफिल होती है हैप्पीनेस की। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सही समझ, सामने वाला अगर डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा है मेरी, फिर भी अगर मेरी समझ है कि भाई इसकी डिसरिस्पेक्ट करने से मेरे पास एक चॉइस है कि मैं अपना भाव खराब करूं या मैं बोलूं चलो कोई बात नहीं, अभी इसका मूड खराब है, अभी ये खुद अपने सही भाव में नहीं है, ये नादान है, तो कोई बात नहीं, इट इज ओके। तो उस केस में मेरे पास एक चॉइस होती है कि मेरी समझ क्योंकि इस मोमेंट में सही है, तो मेरे पास चॉइस है कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा इस सिचुएशन के अंदर। तो सही समझ और सही भाव से मेरी जरूरतें फुलफिल होती हैं। सो ये भी देखा जाता है कि शरीर की जरूरतें सही समझ और सही भाव से केवल नहीं फुलफिल हो सकती है। ऑफ कोर्स आई नीड राइट अंडरस्टैंडिंग टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि अगर मुझे यही समझ नहीं कि मुझे कितना खाना खाना है, क्या खाना खाना है, कैसे खाना खाना है, तो मेरा शरीर तो खराब हो ही जाएगा कुछ सालों बाद। तो मुझे सही समझ तो चाहिए हेल्थ के बारे में, पर वो काफी नहीं है, शरीर को साथ ही साथ फिजिकल फैसिलिटी जैसे खाना भी चाहिए। तो शरीर के लिए सही समझ, सही जरूरतें तो चाहिए, पर मेरे को साथ में वो खाना भी चाहिए जो शरीर को मैं खिला सकूं। दूसरी चीज की जो सेल्फ है, नीड्स ऑफ सेल्फ कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय फिजियोकेमिकल थिंग्स, लाइक फूड कैन नॉट मेक मी हैप्पी, एयर कैन नॉट मेक मी हैप्पी, मेडिसिन कैन नॉट मेक मी हैप्पी। ये एक प्रपोजल है सोचने के लिए कि नीड्स ऑफ सेल्फ कैन ओनली बी फुलफिल्ड कि जब मेरे अंदर का सही भाव है और सही समझ है इस क्षण में, इस मोमेंट में। दोनों नीड्स को हमें अलग से समझना होगा, ये बहुत जरूरी है। जब हम आज चिंतन करेंगे, घर में डिस्कस करेंगे फैमिली में, तो बॉडी की नीड्स के बारे में अलग से सोचें, बॉडी के फिनोमिनन को समझें, सेल्फ की नीड्स को अलग समझें। तो अब ये भी हमारा क्लियर निकल के आया था डिस्कशन में, हाफ हाफ था कि प्रायोरिटी क्या है। कई लोग बोले कि सेल्फ की नीड्स की प्रायोरिटी ज्यादा है, कई लोग बोले बॉडी की नीड्स की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो उस बात पे हम सोचें कि जब हम सारे लोग अगर एफ्लुएंट हैं और हमारे पास कमी नहीं है खाने पीने की, है ना, घर की, कपड़े की, तो कौन सी नीड ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ये एक इनर डायलॉग हो। और अगर ये लगता है कि मेरे सेल्फ की हैप्पीनेस की नीड ज्यादा जरूरी है, बजाय ये कि मैं मटर पनीर खा रहा हूं या दाल चावल खा रहा हूं, तो फिर ये बात पे ध्यान आए कि मैं मटर पनीर के लिए पैसे कमाने में कितनी मेहनत कर रहा हूं वर्सेस मैं अपने रिश्तों में, अपने परिवार में खुशी के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, अपने झगड़ों को सॉल्व करके समाधान प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। जितनी मेहनत मैं दिन में जितने घंटे काम में बिताता हूं, मैं कितने घंटे अपनी रिश्तों की समझ बनाने में बिताता हूं, और अपने रिश्तेदार से, अपने प्यारों से कितनी देर मैं बिताता हूं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये अपने अंदर सवाल होना है। सो ये प्रपोजल है कि नीड्स रिलेटेड टू सेल्फ है समझ और संबंध, नीड रिलेटेड टू बॉडी है हेल्थ एंड फिजिकल फैसिलिटी, एंड संबंध बाकी इंसानों के साथ और प्रकृति के साथ भी है ऑफ कोर्स, पर मोस्टली इंसानों के साथ, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी लिव क्लोजर टू ह्यूमन बीइंग्स। और जो फिजिकल फैसिलिटी है वो पूरे नेचर के साथ म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी में हो, ये हमारी नीड है। म्यूचुअल हैप्पीनेस विद ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें राइट फीलिंग्स हो, जैसे मेरे फैमिली, वर्क प्लेस में ट्रस्ट हो, रिस्पेक्ट हो, वो संबंध की सही भाव जो हम आगे आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे, 9 भाव संबंधों के। और फिजिकल फैसिलिटी नंबर 3। अब प्रायोरिटी ऑर्डर भी हमने कल डिस्कस किया था ग्रुप में, तो निकल के आया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट अंडरस्टैंडिंग, so that I can ensure my relationships go well and I can also ensure the right physical facilities available
So, and I can ensure that I eat well, use my body well, treat my body well, so that I can live with health. So right understanding number 1. और कल के पोल में भी आया था, for most people relationship is more important than physical facility, that I want harmony in my relationships. मुझे अपने संबंधों में सुख ज्यादा जरूरी है सुविधा की बहुतायत से. So अगला पॉइंट आता है, अब एक्टिविटी देखें कि मेरी क्रियाएं क्या है, मेरे अंदर क्या घटता है और मेरे शरीर के अंदर क्या घटता है. तो पहले शरीर के अंदर देखें, चलना होता है, मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं शरीर को, चलो, खाओ. फिर कुछ ऑटोनॉमस प्रोसेसेस होती हैं शरीर की, कुछ तो मेरे इंस्ट्रक्शन से होती हैं, जैसे उठो, खाओ, पियो. तीसरी होती है जो खुद से चलती है, जैसे सांस, अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस, दिल की धड़कन, खून का बहाव, ये सब चलता रहता है ना. खून कभी दिल से बाहर की तरफ जा रहा है, कभी बाहर से वापस दिल की तरफ आ रहा है. ये कंटिन्यूअस प्रोसेसेस चलती रहती हैं बॉडी की, मतलब कंटिन्यूअस नहीं, ये सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं. फिर मेरे अंदर क्या प्रोसेसेस चलती हैं? सबसे पहली प्रोसेस तो मैं बोलूं तो एक्सपीरियंस. आई एम एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग. जो मैं हूं, मैं अपने शरीर से संवेदनाओं का भी अनुभव लेता हूं कि भाई शरीर में दर्द है, शरीर में यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ बुरा लग रहा है, शरीर को भूख लगी है, प्यास लगी है ना. साथ ही साथ मैं अपने मन को भी देखता रहता हूं, एक्सपीरियंस ले रहा हूं कि मेरे अंदर क्या थॉट्स आ रहे हैं इस टाइम, मैं इस टाइम सुखी फील कर रहा हूं या दुखी फील कर रहा हूं. मेरा एक सपनों में भी मैं एक्सपीरियंस लेता हूं, जागते हुए भी एक्सपीरियंस ले रहा हूं. ये एक्सपीरियंस की प्रोसेस है जो निरंतर चल रही है. दूसरी प्रोसेसेस देखें जो मेरे अंदर चलती हैं, वो है मेरी इच्छाएं, माय डिजायर्स. मेरे डिजायर्स आ रहे हैं, टिके हुए हैं, कितने सारे डिजायर्स हैं. मेरी फीलिंग्स हैं, मैं सुखी हूं, दुखी हूं, मतलब फीलिंग की भी एक्टिविटी चल रही है. समटाइम्स मैं सुख फील कर रहा हूं, समटाइम्स मैं दुख फील कर रहा हूं. मेरी थिंकिंग की भी एक्टिविटी चल रही है, मेरी एक्सपेक्टेशंस भी चल रही हैं. जैसे मैं अपने शरीर को अगर बोलता हूं, मैं पलंग पे लेटा हूं, मैं अभी इंस्ट्रक्शन दूंगा बॉडी को उठो, तो उठ जाएगी. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस. इवन इस लेवल तक एक्सपेक्टेशन चलती है ना. लोगों से एक्सपेक्टेशन तो बात की बात है, इवन बॉडी से एक्सपेक्टेशन चल रही है कि बॉडी ऐसा बिहेव करेगी जब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा. तो ये एक्टिविटीज है मेरे अंदर की. इन दोनों में फर्क है, शरीर की एक्टिविटीज और मेरी एक्टिविटीज में फर्क है. तो अब देखें कि ये जो एक्टिविटीज हैं दोनों टाइम के हिसाब से भी कैसे वेरी करती हैं. बॉडी की एक्टिविटीज टेम्परेरी होती है, जैसे कि खून बहने की भी बात की जाती है, सांस लेने की बात. कहीं एक FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि भाई चलो ईटिंग वॉकिंग तो मैं टेम्परेरी होती है, खाया फिर भूख मिट गई, बाद में खाया, हर टाइम तो नहीं खा रहे हैं, पर मेरी सांसें तो लगातार चल रही हैं. पर उसमें भी अगर हम देखें तो श्वास में और प्राण में दो प्रकार की एक्टिविटीज चल रही हैं ब्रॉडली. एक तो मैं सांस अंदर ले रहा हूं, प्राण भर रहा हूं, दूसरी सांस बाहर जा रही है. ये दोनों एक्टिविटीज कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रोकन है. हम ब्रीदिंग को एक टोटल एक्टिविटी में जो देखते हैं, एक्चुअली दो अलग एक्टिविटीज हो रही हैं. वन कि मेरी सांस अंदर आ रही है, दूसरी बाहर जा रही है. खून बहने की भी देखें तो एक एक्टिविटी में हृदय से बाहर खून जा रहा है, दूसरी में बाहर से अंदर वापस हृदय में आ रहा है. तो बॉडी की सारी एक्टिविटीज टेम्परेरी इन नेचर हैं. इनफैक्ट बॉडी खुद टेम्परेरी है, आज है कल नहीं रहेगी. दूसरी बात, साइंस में ये भी निकल के आया है एक ऑब्जर्वेशन कि हर 7 सालों में बॉडी के सारे सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब सारी कोशिकाएं रिप्लेस हो गई. आज ये जो आयुष के रूप में मैं आपके साथ बैठा हूं, 37वां साल लगा है. तो अगर ये सच है तो 5 बार मेरे शरीर जन्म लेने के बाद इस धरती पे 5 बार मेरे बॉडी पूरी बदल चुकी है ना. तो बॉडी की हर एक्टिविटी टेम्परेरी है. अब मेरी एक्टिविटीज देखें, मेरी एक्टिविटीज कंटिन्यूअस हैं, ये कभी नहीं रुकती. जैसे मेरा जो एक डिजायर सेट है, बैठा हुआ है कि मैं सुखी रहना चाहता हूं, ये कंटिन्यूअस डिजायर है. मेरा एक्सपीरियंस लेने का जो प्रोसेस है कि मैं अनुभव कर रहा हूं, जीते जी अनुभव कर रहा हूं, सपनों में अनुभव कर रहा हूं, वो लगातार मेरा चलता रहता है. इनफैक्ट जब हम ये भी कुछ लोग FAQ में पूछ लेते हैं कि भाई जब मैं गहरी नींद में होता हूं तब तो मेरे को कुछ अनुभव नहीं है, याद नहीं होता. पर अगर हम अपना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस देखें कि मेरे को क्या अनुभव हुआ, तो जिस क्षण मेरे शरीर को नींद आई थी
उस क्षण के पहले और उस क्षण के बाद मेरी कंटिन्यूटी है। मतलब द मोमेंट आई लास्ट रिमेंबर बिफोर फॉलिंग माई बॉडी फेल asleep and the moment I have woken up and I'm still lying on my pillow and my bed, there is a continuity of experience I have been experiencing. Even meditation में भी मैं जब बैठता हूं विचार शून्य हो गया तो स्टिल मैं होता हूं, चाहे विचार नहीं है पर मैं तो एक्सपीरियंस ले रहा हूं। तो सेल्फ की एक्टिविटीज कंटिन्यूअस है, बॉडी की टेम्परेरी है। इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन है क्या आप लोगों का? ठीक है, तो अब देखा जाए कि मेरी नीड्स है, बॉडी की नीड्स है, मेरी एक्टिविटी है, बॉडी की एक्टिविटीज है ना। मेरी एक्टिविटी में बॉडी को इंस्ट्रक्शन देना भी इंक्लूडेड है, मैंने लिखा नहीं है, और बॉडी से इंफॉर्मेशन रीड करना भी इंक्लूडेड है एक्टिविटी में। प्रॉब्ली आई विल ऐड फॉर द नेक्स्ट टाइम, है ना, कि मैं बॉडी को इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूं और रीड भी कर रहा हूं। सो नेक्स्ट, रिस्पॉन्स, कि भाई बॉडी अपनी नीड्स को कैसे फुलफिल करती है, मतलब बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है टू द स्टिमुलस अराउंड इटसेल्फ। जैसे कि मानिए कि मैं खाना खाता हूं, मुंह में, जुबान में मैं भोजन डालूं, तो बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है? 2 लेवल का होता है। आप देखिए, बॉडी पहले तो तुरंत पहचानती है कि मेरा रिश्ता क्या है इस वस्तु से, व्हाट इज माई रिलेशनशिप विद दिस ऑब्जेक्ट। वो तुरंत पहचानती है इमीडिएटली थ्रू फिजियोकेमिकल रिएक्शन दैट दिस इज फूड। ओके, तुरंत सलाइवा वहां पे रिलीज होने लगता है माउथ में, है ना, तुरंत वो रिश्ता पूरा करने लगती है। जैसे ही पहचानी फूड है, वो तुरंत रिश्ता पूरा करने लगेगी। जैसे मैं शरीर में अगर सुई चुभाऊंगा तो फिर वो सुई तुरंत बॉडी पहचानेगी, मेरी स्किन की एक सुई आ रही है, वो इसको विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन पहचानते ही तुरंत फुलफिल कर देगी कि भाई तुम जाओ अंदर, है ना। तो बॉडी की और इनफैक्ट पूरे मटेरियल ऑर्डर की दुनिया में 2 एक्टिविटीज हैं, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग। जैसे कि एक चुंबक और एक लोहा एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं भाई चुंबक और लोहा है, तुरंत आकर्षित हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ खिंच जाते हैं, है ना। तो 2 एक्टिविटीज बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी का है, पहचानना कि मेरे को क्या वस्तु है मेरे आसपास, और फुलफिल करना रिलेशनशिप। जैसे एंटीबॉडीज भी आ गई, बीमारी आ गई, बॉडी तुरंत पहचानती है फॉरेन मटेरियल है, भाई चलो लड़ो इससे, है ना। अब सेल्फ में आते, मेरे अंदर 4 प्रक्रियाएं चलती हैं। वो है जानना, मानना, फिर पहचानना और निर्वाह करना। अब इसमें ना मानना वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब हम लिखे हैं अज्यूमिंग और एक्सेप्टिंग। मतलब मान लिए कि भाई ऐसा हम बिलीव कर लिए, या फिर किसी और ने बोला तो मान लिए, ठीक है ना। पर हम जाने कि नहीं जाने ये हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे थे तो हमें बोला जाता था कि भाई कोई लेटा हो उसके ऊपर से चढ़ के जाओगे तो उसके शरीर की हाइट नहीं बढ़ेगी। हम सब बच्चे मान लेते थे ये बात, है ना। तो जैसे ही कोई बच्चा लेटा हम उसके ऊपर से चढ़ के नहीं जाते थे, या फिर उसे परेशान करने के लिए जानबूझ के चढ़ के जाते थे। पर जो लेटा हुआ बच्चा वो तुरंत पहचान लेता था, पहले उसने भी माना है कि मेरे ऊपर से चढ़ के जाएंगे तो हाइट नहीं बढ़ेगी, तो फिर वो तुरंत पहचाना मेरे ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, वो तुरंत निर्वाह करेगा, भैया मेरे ऊपर क्यों चढ़ के जा रहे हो, है ना, प्लीज मेरे ऊपर मत चढ़ो। तो मानने से हमारा पहचानना होता है। जैसे कि अगर मैं किसी को मानूं कि ये मेरा अपना है ना, मेरा भाई है, ये मैंने माना कि मुझे अपने भाई के साथ प्रेम से रहना है, मैं मानता हूं, है ना, आपको, आप मेरे भाई हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप मेरे सामने आओगे तो मैं पहचानूंगा आपको, अच्छा कि भाई मेरा भाई आया है, तो मैं भाई के साथ जो रिश्ता बनता है मैं निर्वाह करूंगा, है ना। अगर मैं मानूंगा कि भाई पैसे से ही सब कुछ है जिंदगी में, मेरा जितना पैसा कमाऊं उतना अच्छा है, तो जो मेरे को लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मे बी 2 टाइप की जॉब्स आएंगी, मैं उनको कैसे पहचानूंगा कि मेरे लिए ज्यादा अच्छी जॉब कौन सी है, वो की जो ज्यादा पैसा देगी या वो जो मेरे को ज्यादा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन देगी। अगर मैं माना हूं कि पैसा ही लाइफ में सक्सेस है, तो मैं अपने क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन को साइड में रखूंगा और मैं पैसे के कारण जॉब लूंगा। तो मानना, पहचानना, निर्वाह करना और जानना भी है साथ में। तो जानने का क्या मतलब? जानने का मतलब है कि सच जैसा है उसको वैसा देख लेना, समझ जाना, उसको कहते हैं जानना। और बाय एक्सपीरियंस उसका प्रूफ भी पाना, इसे कहते हैं जानना।
जैसे आज हम बोलें कि अर्थ के और हमारे बॉडी के बीच में ग्रेविटेशन का फोर्स है, ये हम जानते हैं, जान के माने हैं, जान के माने हैं कि ग्रेविटेशन का फोर्स है। तो क्यों? क्योंकि हम जब भी उछलते हैं वापस बॉडी नीचे खिंचती है, हमें शरीर का भार महसूस होता है, धरती से खिंचाव महसूस होता है, तो हम जाने हैं ना कि ऐसा होता है। फिर स्कूल की बुक में हम समझे भी ऐसा कैसे होता है, इसके फॉर्मूला क्या है, तो हम जाने गुरुत्वाकर्षण को, तो हम माने कि जब मैं बॉल उछालूंगा ये वापस धरती पे गिरेगी। तो ये 4 एक्टिविटीज हैं। नोइंग की मतलब टू सी द रियलिटी एज इट इज इन इट्स कंप्लीटनेस बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, है ना। जब हम किसी चीज को जान जाते हैं वो जैसी है और उसकी पूर्णता में जान जाते हैं खुद देख के, तो हमको दिखता है कि जो सच है वो डेफिनेट है, वो निरंतर है और वो हर जगह सेम है। मतलब सच बदलता नहीं रहता है, जो प्रकृति के नियम हैं, जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, दे आर ऑलवेज द सेम। प्रकृति के नियम हर जगह, हर क्षण, हर काल में सेम है। वो कभी धोखा नहीं देगी नॉलेज, क्योंकि हम सच को जान लिए और सच हमेशा डेफिनेट पाया जाता है। अज्यूमिंग पे आते हैं। अज्यूमिंग है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी, कि मैं किसी चीज को सच मानता हूं। तो किसी चीज को सच मानना या तो जानने के बेसिस पे हो सकता है, या फिर किसी और के कहने के बेसिस पे हो सकता है, या फिर मेरी इमेजिनेशन, मेरी कल्पना के बेसिस पे हो सकता है। कि मैंने, भाई लोगों ने कहा कि भाई हमारा पड़ोसी मुल्क का हर इंसान टेररिस्ट है, तो मैंने भी मान लिया। दूसरी बात कि भाई मेरे साथ जो आदमी है उसने अपनी जेब में हाथ डाला, तो फिर मैं अगर एक ऐसे एरिया में हूं जहां बहुत क्राइम होते हैं, हो सकता है मैं मान लूं बंदूक निकाल रहा हो और मैं तुरंत डर के भाग जाऊं, तो वो मैंने मान लिया कि ऐसा शायद है। कुत्ता सामने आया, मैंने मान लिया ये काट लेगा मेरे को, मैं भागने लगा या पत्थर फेंकने लगा, है ना। वाइल द रियलिटी में भी कि जिसने जेब में हाथ डाला वो मेरे साथ लड्डू निकाल के बांटना चाह रहा होगा, या जो कुत्ता आया वो बड़ा भोला है, वो किसी को काटता नहीं है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी मतलब हम बिना जाने भी कई बार चीजें मानते हैं, जैसे कि मुझे आगे इस पे और डिस्कशन होगा। तीसरा है रिकॉग्नाइजिंग, पहचानना कि मेरा रिश्ता क्या है ना। मेरा रिश्ता दूसरे इंसान से क्या रिश्ता है, शेष प्रकृति से मेरा क्या रिश्ता है, मेरे शरीर से क्या रिश्ता है। हम पहचानते हैं अपने रिश्ते को। चौथी चीज है हम रिश्ते को पूर्ण करते हैं, हम जस्टिस करते हैं रिश्ते के साथ। तो अगर मेरा मानना गलत है इस रिश्ते के बारे में कि मैंने भाई को ही दुश्मन मान लिया, तो मैं उसको पहचानूंगा भी गलत, और मैं रिश्ते का फुलफिलमेंट भी दुश्मनी के हिसाब से कर दूंगा, भाईचारे के हिसाब से नहीं, तो वो गलती हो जाएगी। तो देखें, तो विदाउट नोइंग जब हम अज्यूम करते हैं और रिकॉग्नाइज गलत करके फुलफिल करते हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम है लाइफ में। हम अपनी प्री कंडीशनिंग के हिसाब से बिना जाने बातों को मानते हैं। उससे क्या होता है कि वो हमारी बातें बदलती रहती हैं। जैसे कि आज मेरा पड़ोसी मुल्क खराब है, कल दूसरे पड़ोसी मुल्क ने अटैक कर दिया, इसने थोड़ी सी मदद कर दी तो आज ये अच्छे हो गए, परसों फिर ये खराब हो जाएंगे, है ना। ये बदलता रहता है। आज ये मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है, फिर मेरा दोस्त है। तो कंडक्ट जो है इंसान का वो डेफिनेट नहीं आता, वो बदलता रहता है। तो ये एक प्रकार की फ्रीडम नहीं है, ये गुलामी है, ये परतंत्रता है। किस चीज की परतंत्रता? हमारे रॉन्ग अजम्पशंस की। इसके कारण हम डिपेंडेंट होके जीते हैं हमारे अजम्पशंस के ऊपर, और वो अजम्पशंस अगर सच पे बेस्ड नहीं है तो हमको लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट होता है। चाहे हम पहचाने कि नहीं, हम लाइफ उतने पोटेंशियल पे नहीं जी पाते जितना हमारा पोटेंशियल है जीने का। पर जो सोल्यूशन है, समाधान है, वो है कि जान के मानना और अकॉर्डिंगली पहचानना और निर्वाह करना। एक बार मैंने अगर गुरुत्वाकर्षण का बल समझ लिया, तो मैं जानता हूं कि हर बार मैं कोई भी साइंटिफिक डेवलपमेंट करूं, मैं ग्रेविटी को कैसे यूज कर सकता हूं, ग्रेविटी मुझे धोखा कभी नहीं देगी, है ना। ये सेल्फ वेरिफिकेशन के बेसिस पे होता है, ये हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे होता है। मतलब कि अगर मैं ये अपने से पूछूं मैं सुखी रहना चाहता हूं हर क्षण, तो नेचुरल एक्सेप्टेंस बोलती है हाँ, और मैं उसको अकॉर्डिंगली जी के कंफर्म करता हूं कि हाँ यार
जो मैंने अपने को जवाब दिया कि मैं सुखी रहना चाहता हूँ, जीने पे कंफर्म हो रहा है मैं हर सेकंड सुखी रहना चाहता हूँ। मेरे पति मुझसे इस टाइम गुस्से में बात कर रहे हैं, है ना, फिर भी इस टाइम मुझे दुख हो रहा है कि वो मेरा अपमान कर रहे हैं या मेरे मन की भाव को नहीं समझ रहे, मुझे उस बात की हार्मनी की एक कमी फील हो रही है रिलेशनशिप में, पर अपने मन की शांति मैं इस टाइम खोऊं कि नहीं, मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस तुरंत बोलती है कि नहीं, मैं अपनी शांति नहीं खोना चाहती। तो इसके बेसिस पे डेफिनेट अजम्पशंस आते हैं और कंडक्ट भी डेफिनेट होता है, तो इंसान स्वतंत्र होके जीता है। स्वतंत्र जो है ये दो शब्दों से बना है, स्व और तंत्र। स्व का मतलब स्वयं, स्वयं का स्व मैं, तंत्र मतलब कि मैं जैसा हूं। तंत्र किसी भी चीज का तंत्र होता है, एक रॉकेट का तंत्र होता है, एक बॉडी, हमारी बॉडी का तंत्र है कि दिल ऐसे धड़कता है, गुर्दे ऐसे काम करते, उसी प्रकार जो मेरा तंत्र है सेल्फ का, मैं वैसे जी पाऊं तो मैं स्वतंत्र हूं। तो रोल ऑफ एजुकेशन है कि हमको समस्या से समाधान पे ले आए। एजुकेशन हमको नोइंग पे लाती है कि हम चीजें जानने लगे, हमें सच्चाई का ज्ञान हो जाए, वो है एजुकेशन। वो हमको समाधान की तरफ लेके आती है। तो इस वाले पार्ट को सम अप करें तो प्रपोजल ये है, आई एम को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ विद बॉडी। सेल्फ इज कॉन्शियसनेस, इसकी नीड्स भी कॉन्शियसनेस से ही फुलफिल होती हैं, जो कि है राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग। मतलब कॉन्शियसनेस की ही एक्टिविटीज कॉन्शियसनेस की नीड्स को फुलफिल करती हैं। बॉडी मटेरियल है और बॉडी की नीड्स को, बॉडी की एक्टिविटी मतलब सॉरी बॉडी की नीड्स को फिजियोकेमिकल थिंग्स या मटेरियल थिंग्स ही पूरा कर सकती हैं। Needs of consciousness cannot be fulfilled by material. Need of material cannot be fulfilled by consciousness alone. मतलब need of material needs right understanding of how the material works and then ensuring the physical facility to fulfill the need of this material. बॉडी का रिकॉग्निशन फुलफिलमेंट हमेशा कांस्टेंट है, डेफिनेट, पक्का। मतलब बॉडी कभी धोखा नहीं खाती जहर को पहचानने में और अमृत को पहचानने में, मतलब बढ़िया खाना पहचानने में। बुरा खाना खाए तुरंत उल्टी करेगी। पर जो हमारी इंसान की प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हम लोग कई बार बिना जाने मान के जीते हैं, इसीलिए इंसान का इनडेफिनिट कंडक्ट आ जाता है, जो हमने डिस्कस किया। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं अनवेरिफाइड अजम्पशंस के हमारी लाइफ में, है ना। ये एक लंबी सी लिस्ट मैंने डाली है, तो इन अजम्पशंस पे तो हम आराम से देख सकते हैं, है ना, कि जैसे कि द मोर मनी आई हैव द हैप्पियर आई एम, है ना। एक कंट्री की प्रोग्रेस इनफाइनाइट ग्रोथ से है कि हर साल जीडीपी बढ़ता रहे। शहर हैं जो देश चलाते हैं, गांव में रहने का मतलब तुम रेस में पिछड़ गए। कॉर्पोरेट करियर ज्यादा जरूरी है अपने बच्चे अच्छे से बड़ा करने से, तो अपना करियर चेस करो चाहे बच्चे पीछे रह जाएं, है ना। फिर पनिशमेंट इज जस्टिस, दूसरे को सजा देने का मतलब न्याय है। मैं हमेशा सही हूं, दूसरे गलत होते हैं। मैं सुखी हूं इवन दो दिन में 4 बार मुझे गुस्सा आता है, मेरे को पेशेंस नहीं रहता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहां पे आज हम एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन पे डिस्कशन करेंगे कि एम आई द बॉडी इटसेल्फ, मतलब इज ह्यूमन बीइंग को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, और इज ह्यूमन बीइंग ओनली द बॉडी। अब यदि हम ये मान के जीते हैं कि मैं केवल ये शरीर हूं, तो उसमें क्या अजम्पशन नेचुरली फ्लो करता है कि मेरी सारी जरूरतें भी शरीर की जरूरतों से ही पूरी होगी, है कि नहीं। मतलब आई विल वांट मोर एंड मोर फिजिकल फैसिलिटी एंड आई विल वांट आल्सो मोर एंड मोर सेंसरी कंजम्पशन, जिसे कहते हैं भोग, इंद्रिय भोग। जैसे कि मुझे लगेगा कि मेरे पास अच्छे सुंदर कपड़े हों, मेरा अच्छा घर हो, मेरी बढ़िया कार हो, मेरा शरीर सुंदर लगे, मेरे शरीर में ताकत हो, है ना, तो फिर मुझे समाज में सम्मान मिलेगा। I will get more respect from people when I have good material stuff and my body is looking beautiful. Also, when I am having sex or I am having tasty food, या फिर I am having lots of physical comfort, जैसे AC है, बढ़िया सोफा है, हर काम करने के लिए रोबोट्स हैं, मुझे कहीं उठना ही नहीं पड़ता है, सारे काम हो जाते हैं, तो मेरे को इस प्रकार की सुविधा में सुख मिलता है।
ये assumptions निकल के आते हैं। अगर हम अपने को बॉडी मानते हैं तो हम बॉडी के सेंसेशंस में हैप्पीनेस ढूंढने लगते हैं। मतलब कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मुझे टेस्टी फूड नहीं मिल रहा है तो मैं दुखी हूं, मुझको अगर कई लोगों को सेक्स के साथ हो जाता है, मुझे सेक्स नहीं मिल रहा है तो मैं परेशान हो जाता हूं, एक उसके कारण मैं लड़ाइयां भी करने लगता हूं, है ना। फिजिकल कंफर्ट नहीं मिल रहा है, लग्जरी नहीं मिल रही है तो भी मैं परेशान हो जाता हूं, मतलब मुझे चीजें चाहिए मेरे सुख के लिए। और क्योंकि एक इंसान की नीड है कंटिन्यूटी में, एक सेल्फ की नीड कि कंटिन्यूटी में हैप्पीनेस चाहता है एक सेल्फ, और जब वो मान लिया कि फिजिकल फैसिलिटी या सेंस प्लेजर से ही उसकी नीड्स फुलफिल होंगी, तो उसको अनलिमिटेड फिजिकल फैसिलिटी चाहिए और अनलिमिटेड सेंस प्लेजर चाहिए। क्यों? क्योंकि फिजिकल फैसिलिटी और सेंसुअल प्लेजर टेम्परेरी होते हैं नेचर में। तो सेंसुअल प्लेजर अभी आया और गया, मुझे फिर और चाहिए, 10 मिनट बाद मुझे खाना चाहिए, अगले 10 मिनट बाद मुझे मीठा चाहिए, फिर मुझे नमकीन चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद मुझे सेक्स चाहिए, थोड़ी देर बाद मुझे कोई और अपने सेंसेशन, मुझे कपड़े अच्छे खरीदने जाना है, राइट। तो हम फिजिकल फैसिलिटी और सेंसुअल प्लेजर में सुख ढूंढते रहते हैं। तो आप इस सर्कल देख रहे हैं कि क्योंकि फिजिकल फैसिलिटी का सेटिस्फैक्शन टेम्परेरी है, तो हम डिप्राइव्ड फील करते हैं कि आई डोंट हैव इनफ, आई नीड मोर, देन वी मेक मोर एफर्ट फॉर फिजिकल फैसिलिटी एंड वी मेक मोर एफर्ट फॉर सेंसुअल प्लेजर, और ये सर्कल चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। सेंसुअल प्लेजर एक और रॉन्ग एजम्पशन देखें जो आई एम द बॉडी से निकल के आता है कि सेंसुअल प्लेजर गिव्स मी हैप्पीनेस। मैं एक और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं कि इंद्रिय भोग से मुझे सुख मिलता है। सेंसुअल प्लेजर हमेशा ट्रांजिएंट है, मतलब वो आता है और वो जाता है, वो टेम्परेरी है। इट कैन नॉट गिव लास्टिंग जॉय। अगर हम देखें, हर सेंसुअल प्लेजर थोड़ी देर के लिए ही होता है। तो जब मैं अपने को शरीर समझ के जीता हूं तो मैं सेंसुअल प्लेजर और फिजिकल फैसिलिटी के एक्यूमुलेशन में अपना सुख खोजने लगता हूं, जिसका ये इनफाइनाइट लूप हम देखें। उसके बाद क्या होता है कि होता क्या है, जब हम इंद्रिय भोग में जाते हैं सेंसुअल प्लेजर में, तो एक टेम्परेरी प्लेजर होता है जो हमें अच्छा लगता है, कुछ सेंसेशंस आती हैं बॉडी से जो हमें अच्छी लगती हैं सेंसेशंस, जैसे कि कोई मेरे को पैर दबा दे, मुझे अच्छा लग रहा है ना। बट सून इट गोज अवे, जैसे पैर दबाना बंद किया वो सेंसेशन चले गए, है ना। पर मैं तो हर क्षण सुखी रहना चाहता हूं ना, और अगर मैंने ये मान लिया है कि मुझे सेंसुअल प्लेजर से और फिजिकल फैसिलिटी से ही सुख मिलेगा, तो मैं अगले क्षण फिर कोई और सेंसुअल प्लेजर ढूंढने लगूंगा, है ना। तो यहां पे बात देखी जाए तो यही प्रॉब्लम हो जाती है कि हम हमेशा सेंसुअल प्लेजर्स ढूंढने रखते हैं। पर खास बात यह है कि हम सब में बराबर पोटेंशियल है कि हम सब लगातार खुश रह सकते हैं, हार्मनी, इनर हार्मनी फील कर सकते हैं। ये पॉसिबल है अगर हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग हो लाइफ में, और हर इंसान में ये पोटेंशियल सेम है। मैंने सेशन के शुरुआत में शेयर किया था जैसे कि हमारा पर्पस सेम है, हमारा पोटेंशियल सेम है, और हमारे प्रोग्राम की एसेंस सेम है, बस फॉर्म अलग है। तो फर्दर इसमें चले तो जब मैं फिजिकल फैसिलिटी और सेंसुअल प्लेजर में एंटरटेनमेंट ढूंढता हूं, है ना, तो बॉडीली एंटरटेनमेंट, बॉडीली प्लेजर में होता क्या है कि बेसिकली देखिए, जब हम अपने को जाने नहीं कि मैं क्या हूं और मेरे अंदर खुद की हार्मनी नहीं है अगर, तो मैं बोर होता हूं। बहुत नॉर्मल लगता है कि मैं बोर बड़ी जल्दी हो जाता हूं, क्योंकि मैं अंदर हार्मनी नहीं है, मेरे थॉट्स में, डिजायर्स में, मेरे इंपल्सेस में हार्मनी नहीं है, तो आई गेट बोर्ड। So why do we seek sensual pleasure? Because temporarily engaging in an activity, एक ऐसे इंद्रिय भोग में जो मुझे बहुत प्लेजरेबल लग रहा है, मैं अपने बाकी दुख भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए। इसीलिए बार बार मैं भागता हूं सेंसुअल प्लेजर्स की तरफ, कभी आंखों का, कभी स्किन का, कभी जुबान का। तो टेम्परेरी एस्केप फ्रॉम माई हार्मनी। पर होता क्या है इसके कारण, है ना, कि I stay feeling unfulfilled because sensual pleasure will always be temporary. तो उसके कारण मुझे कांस्टेंट लैक ऑफ हार्मनी जो मेरे अंदर है वो सॉल्व नहीं हो पाती। मतलब मेरे को सरदर्द है, मैं पेन किलर लेके अपने सरदर्द को सॉल्व करना चाह रहा हूं। मेरे दांत खराब हो गया है, मैं पेन किलर दे रहा हूं कि मेरे को शायद दांत ठीक हो जाए। हम वैसे ही सेंसुअल प्लेजर लेते रहते हैं।
पर हमारा बोर्डम, स्ट्रेस, टेंशन कभी जाता नहीं है। दूसरा आउटकम क्या होता है इसमें कि जब मेरे को सेंसुअल प्लेजर नहीं मिल रहा है, मानिए कि अभी मैं 2 बार खाना खा लिया, 3 बार अब मैं खा नहीं सकता, पेट भरा हुआ है ना, आई जस्ट हैड इनफ सेक्स और अब सेक्स भी नहीं हो सकता है, मैंने खूब अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन के सुंदर अपने को सजा लिया है, अब उसका भी स्कोप नहीं बचा है, तो फिर अब मैं क्या करूं? तो फिर मैं और लोगों से एक्सपेक्टेशंस करने लगता हूं कि मेरी लैक ऑफ हार्मनी आप फुलफिल कीजिए, आप ऐसा बिहेव कीजिए कि मुझे अच्छा लगे। तो मैं दूसरों पे अपनी एक्सपेक्टेशंस का मेरा भार जाने लगता है, और जब दूसरे वैसे एक्ट नहीं कर पाते जैसा मैं चाहता हूं तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे डिसअपॉइंटमेंट होने लगता है। तो बात क्या है कि हम लोग जो अच्छे सेंसेशंस और दूसरों में अच्छे एक्शंस लगते हैं उनके लिए क्रेव करने लगते हैं, क्योंकि मेरे अंदर हार्मनी नहीं है, तो अपनी हार्मनी टेम्पररी फील करने के लिए मैं या तो चीजों में या दूसरे के व्यवहार में या सेंसेशंस में और टेम्पररी ग्रेटिफिकेशंस ढूंढने लगता हूं, और साथ ही साथ मैं वो सेंसेशंस भी नहीं चाहता हूं और दूसरों से वो एक्शंस भी नहीं चाहता हूं जो मुझे अच्छे नहीं लगते। इसको बुद्ध ने बोला क्रेविंग या एवर्जन, मतलब राग या द्वेष। या तो मैं अपने क्रेविंग की तरफ भाग रहा हूं कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए, नहीं मिलेगी तो मैं परेशान हूं, या फिर मैं जिससे एवर्जन रखता हूं मैं उससे दूर भाग रहा हूं कि भाई ये मेरी आंखों के सामने ना आ जाए, इस इंसान से मुझे नफरत है, आई डोंट इवन वांट टू सी हिज फेस, उसका नाम भी आपने ले लिया तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। तो हम इसी में बंधे जीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ने अपनी हैप्पीनेस का सोर्स या तो मान लिया फिजिकल फैसिलिटी है या सेंसेशन है या दूसरों के एक्शंस और दूसरों की तरफ से राइट फीलिंग्स हैं। तो यही सेम डिस्कशन जो यहाँ पे आया है पहले भी हुआ था। तो इसका रिजल्ट क्या होता है इन सब बातों का? मतलब हैप्पीनेस को सेंसेशन में ढूंढते या इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट में ढूंढते हैं, फिल्म्स देखेंगे, सोशल मीडिया पे ज्यादा ही टाइम बिताते हैं, पुरानी फोटोज देखते रहते हैं, गॉसिप में लगे रहते हैं, डिबेट्स करते हैं, पॉलिटिक्स पे लड़ जाते हैं एक दूसरे से, या फिर हम दूसरों से हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई तुम ऐसा व्यवहार करो मेरे साथ। तो कंटिन्यूटी हम इन चीजों में ढूंढने लगते हैं, अपने से बाहर, अपने सुख की कंटिन्यूटी अपने से बाहर ढूंढने लगते हैं। उसका परिणाम क्या है? रिजल्ट, सबसे पहले हमारा शरीर खराब होने लगता है, क्योंकि हम इतना ज्यादा खाते रहते हैं, हम गलत टाइम पे खाते, गलत चीज खाते, हम न्यूट्रिशन के लिए नहीं खाते, टेस्ट के लिए खाते हैं, है ना? बॉडी खराब होने लगती है। दूसरी चीज, पैसा भी वेस्ट हो जाता है इन चीजों में। तीसरी चीज कि ये जो मेरी क्रेविंग एवर्जन है, जो राग द्वेष, ये और बीज डाल देता है मेरे को और दुखी करने के। चौथी चीज और मेन चीज कि जो मेरा पर्पस है कि मैं निरंतर सुखी रह सकूं, वो ना हो पाता। पांचवी और आखिरी चीज कि ये हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारी प्रकृति के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आज तक रही है और आज और ज्यादा हो गई है। आप हालत देख ही रहे हैं, फैमिली इज ब्रेकिंग, सोसाइटी इज मोर लाइक अ क्राउड और अ बैटल ग्राउंड, की मतलब समाज या तो भीड़ है या जंग का मैदान है, और प्रकृति की भी हालत हम जानते हैं क्या हो रहा है ना? आप देख सकते हैं हेल्थ भी खराब जैसे हुई, ज्यादातर डिजीजेस साइकोसोमैटिक है नेचर में, मतलब हमारे गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत जीवन शैली से निकल के हमारी ज्यादातर बीमारियां आ रही हैं। ज्यादातर हॉस्पिटल एडमिशंस हमारे थिंकिंग और लाइफस्टाइल से क्रिएटेड डिजीजेस के कारण आ रहे हैं। कई सारे लोग साइकोलॉजिस्ट के पास भागने लगे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं रिश्तों के बीच में कि फीलिंग नहीं मिलती हम लोग को। तो ये है अभी तक, और अभी तक